Hello everyone. So in this video we are going to discuss Article 15, that is second in right to equality. The first was Article 15. So there are 5 articles that you can see on the screen, right? There are 5 articles in right to equality starting from Article 14 to Article 18, right? So in this video we will be discussing Article 15 in detail, and prior to that we already have discussed Article 14, right? So अगर वो video आपने नहीं देखा है, because these 3 article 14, 15, 16, right? ये एक thread से connected है, and without understanding of one article you won't be able to complete the other article. That's why my recommendation would be कि आप 14 को पहले देखो, right? Thereafter you jump to Article 15, right? So let us move to next slide and let us see कि how many clauses are there to this Article 15. So there are 6 clauses, right? 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 and 15.6, right? So हमारा approach इस slide पे हम लोग सिर्फ ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देखोगे, राइट? तो उसमें हम लोग डिटेल में इन सभी क्लॉजेस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो इन दो क्लॉजेस को 15.1 एंड 15.2 को एक साथ आप याद करना, एंड दूसरी कैटेगरी में आप क्लाउज 3, क्लाउज 4, क्लाउज 5 एंड क्लाउज 6 को डालना, राइट? बिकॉज इन दोनों में एक कॉमन थ्रेड है और इन चारों में एक कॉमन थ्रेड है. कॉमन थ्रेड क्या है कि 15.1 and 15.2, if you see, right, these are extending fundamental rights to its citizens, means to us, right? And these 4, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 are nothing but exceptions to these clause, right? Means इसमें जो right extend किए गए उनका exception इन चारों में है. Let us see कैसे, right? So पहला अगर क्लाउज आप पढ़ो तो ये पहला क्लाउज 15.1 बोलता है, state shall not discriminate its citizens on the basis of certain grounds, and those certain grounds are religion, race, caste, sex and place of birth, right? 5 ground RRCSP, right? So article 14 अगर आप remember कर पा रहे हो, right? So article 14 में जो rights थे, right? So it was protecting rights of all the persons including foreigners and legal person, but here the rights are protected only for citizens, right? So that is the one difference between Article 14 and 15. Again, jumping back to Article 15, right? So state shall not discriminate on these grounds. Thereafter 15.2, state and private person, right? Means this right, 15.2 rights under 15.2 has been protected against both state and private individual as well. While under 15.1, the rights were protected only against violation by the state. So that is the difference between 15.1 and 15.2, right? So these two articles, as I said, right, has a common characteristic, and the common characteristic is that these two articles are extending, these two clauses are extending fundamental rights to its citizens, means we, right? And these 4, if you see, these 4 are nothing, these 4 are exceptions to these clauses, right? So what does the 15.3 says? For the welfare of women and children, right, state can or state may design some law, and that will not be violation of 15.1. because 15.1 का कैसे violation हो सकता था? because 15.1 में आपने क्या कहा है कि सेक्स के बेसिस पे, right, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट यहां आप कह रहे हो 15.3 में एक एग्जम्पशन दे रहे हो कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आप एज अ स्टेट, राइट, स्टेट कैन डिजाइन सम लॉ एंड दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड द वायलेशन ऑफ these grounds, right? So this is an exception. How 15.4 is an exception? For the welfare of SC, socially and educationally backward classes, SC and STs के लिए आप कोई डिजाइन कर सकते हो अगेंस्ट स्कीम, या उनके एडवांसमेंट के लिए कोई पॉलिसी मेजर्स ले सकते हो, एंड दैट विल नॉट अगेन लीड टू वायलेशन ऑफ व्हाट? कास्ट ग्राउंड, राइट? ऑल्दो अगर ये मेंशन, ये एग्जम्पशन नहीं दिया होता तो दैट वुड, भाई एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, कोई पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, राइट, सो दैट में लीड टू, दैट में बी कॉल्ड एज वायलेशन ऑन द कास्ट ग्राउंड, राइट? बट यहां आपने एग्जम्पशन दे दी. ऑल्दो ये सब जो है ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन. वी विल डिस्कस दैट, राइट, इन डिटेल. जस्ट इन चारों के कॉमन थ्रेड कैसे हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. 5th में आप कह रहे हो फॉर द एजुकेशनल एडवांसमेंट और एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ दीज क्लासेस, सोशली, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस, SC और ST के अगर एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए स्टेट कोई एक्शन लेता है, अगेन दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ 15
1। सिक्स्थ में आप कह रहे हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगर एम्पावरमेंट के लिए स्टेट कोई लेजिस्लेशन लाता है, अगेन दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ 15(1), राइट। सो दीज 4 clauses 3, 4, 5, 6 you saw, right, these are nothing but exceptions to what rights has been extended into 15(1), 15(2). so here is that common thread, right, that I have combined, right. So these two are extending your fundamental rights and these 4 are exceptions to FR extended in 15(1) and 15(2). so I hope कि आपको broadly अब clear हो गया होगा और आपको याद रखने में आसानी होगी, राइट। यहां ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि इसमें इन चारों क्लाउजेज में वीकर सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, SEBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन के राइट्स के लिए कुछ एग्जम्पशन इन चारों क्लाउजेज में एक्सटेंड हुए हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि 15(1), 15(2) में राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इज बीइंग एक्सटेंडेड एंड इन 3, 4, 5, 6 सर्टेन एग्जम्पशंस हैज बीन गिवन from these 15(1) and 15(2) for the weaker section of the society, right. so let us move to the next slide और इन 6 क्लाउजेस को हम लोग डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। 15(1) and 15(2) इस स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, राइट। सो 15(1) is state shall not discriminate against its citizens only on the basis of RRCSP, that is religion, race, caste, sex and place of birth, right. so the keywords if you see in the bold here, that state shall not discriminate, right, discriminate, लेकिन पॉजिटिव एक्शंस जो हैं वो ले सकती है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट, affecting something adversely, right. so state shall not discriminate against its citizens, right, only on the basis of, so only on these basis, but on the other basis, right, it can discriminate. so there are two keywords, that is it is not allowed to discriminate, right, लेकिन कोई पॉजिटिव एक्शन लेना हो तो दैट कैन बी टेकन। एंड माइंड यू कि 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) में जो हम लोगों ने देखा है, राइट। सो उसमें जो भी लेजिस्लेशंस डिजाइन होंगे या पॉलिसी मेजर्स लिए जाएंगे फॉर वुमेन और फॉर SEBC, SC, STs, राइट, तो वो इसी वर्ड्स का फायदा उठा के, मींस इसी वर्ड के साथ प्ले होके होने वाला है, राइट। वहां ये बोला जाएगा कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, इक्विटी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, राइट, कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि नीचे रह गई थी उन्हें अपलिफ्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड not only on the basis of there are other, on the other basis, right, you can discriminate, right. so this is 15(1). let us move to discuss 15(2). and 15(2) you will say that no citizen shall on grounds of these grounds, again those 5 grounds, shall be subjected to any kind of liability, disability, restriction with regard to what, access to shop। यहाँ जो प्राइवेट शॉप है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज शॉप्स नेवर हैव अ प्राइवेट नेचर, ठीक है। शॉप्स जब भी खोली जाती हैं तो पब्लिक के लिए खोली जाती है, तो इन ग्राउंड्स पे कि भाई आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हो या पर्टिकुलर सेक्स के हो, भाई मैं अपने शॉप में एक्सेस नहीं दूंगा, सो दैट विल लीड टू वायलेशन ऑफ दैट पर्सन्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15(2), राइट। सो ही कैन ड्रॉ यू इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर टेकिंग रिसोर्ट ऑफ आर्टिकल 32, राइट। सो एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस और पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस पे, राइट, इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन जो है, इन ग्राउंड्स पे आप एंट्री जो है, राइट, एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन यू कैन नॉट इम्पोज। देयर आर अदर ग्राउंड्स एज वेल, यूज ऑफ वेल्स, राइट। अब यहाँ माइंड यू, यहाँ शॉप्स के लिए, प्राइवेट शॉप्स के लिए भी मैंने आपको बोला था कि अगर शॉप प्राइवेट भी है तब भी आप एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ जब यूज ऑफ वेल्स की बात हो रही है तो यहाँ पब्लिक वेल्स की बात हो रही है, राइट। इट्स नॉट कि भाई मेरा कोई कुआं है या मेरा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट, एंड इन दैट प्रॉपर्टी, राइट, इफ समबडी सेज कि भाई मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सर्विसेज चाहिए, एंड इफ आई वांट टू डिनाई दैट राइट टू दैट पर्सन, ही कैन नॉट ड्रैग मी, ही और शी कैन नॉट ड्रैग मी citing the violation of his or fundamental right, his or her fundamental right. The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort. लेकिन हाँ, यहीं अगर ये पब्लिक नेचर का है, राइट, अगर स्टेट ने बनाया हुआ है, राइट, या फिर किसी टेम्पल का है, सो देयर इन दीज एरियाज, राइट, अगर पब्लिक नेचर की चीजें ये है तो वहां इन ग्राउंड्स पे अगेन आप जो है, अगर वो पार्टली स्टेट फंड से या फिर होली स्टेट फंड से ये सब चीजें बनी हैं, राइट, तो वहां आप एंट्री उनकी नहीं डिनाई कर सकते,
राइट, या कोई भी बॉडी जो है या कोई पर्सन जो है डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज दैट विल लीड टू वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15(2) एंड एज आई सेड कि यू कैन बी ड्रैग्ड इन वायलेशन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो 15(1), 15(2) जिसके सेम कैरेक्टरिस्टिक थे वो हमने पढ़ लिया है। नाउ वी आर डेल्विंग इनटू एक्सेप्शन टू दोज फंडामेंटल राइट, दैट इज 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), राइट। तो यहाँ 4 स्ट्रिप आएगा, राइट। द फर्स्ट विल बी ऑफ 15(3). सो लेट अस सी कि 15(3) क्या बोलता है, राइट। सो 15(3) इफ यू सी द आइकन, राइट, स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट। एंड इसके अंदर अगर देखोगे तो IPC 497 जो कि अडल्ट्री के साथ डील करता है, राइट, तो वुमेन को अबेटर नहीं, अगर अडल्ट्री आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा, राइट, इन दैट अडल्ट्री सिस्टम, राइट, तो वहाँ वुमेन को अबेटर नहीं माना जाता अगर कोई क्राइम ऐसा होता है तो अंडर अडल्ट्री, राइट। सो दैट रिलैक्सेशन हैज़ बिन गिवन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि अपनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में वुमेन की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरह की है। सो अंडर आर्टिकल 15(3) द स्टेट इज परमिटेड कि भाई वो बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए और वुमेन के लिए कुछ स्पेशल लॉ जो है वो ला सकती है, राइट, और उसको उसको जो है फंडामेंटल राइट अंडर 15(1), राइट, जहां हम रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बात की थी, तो उसको उसका वायलेशन जो है वो नहीं माना जाएगा, राइट। लेट अस सी 15(4) क्या बोलता है। तो 15(4) में आप कहोगे, देखोगे कि स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू SEBC, एंड माइंड यू ये ई का मतलब इकोनॉमिक नहीं है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ कास्ट नहीं है, right? So E stands for here education and C stands for classes, not caste or not education. So members for the advancement of members belonging to socially and educationally backward classes SC and ST, right? और इस पे एक कॉमन थ्रेड जो आपको याद रखने के लिए कि ये सारे क्लाउजेज जो हैं वो वीकर सेक्शन के मेंबर्स के राइट्स के लिए या उनके लिए पॉलिसी मेजर्स के लिए या उनके एडवांसमेंट के लिए, राइट, बात करने वाली है, right? So again jumping to 15(4), so 15(4) state is permitted to make special provision for the advancement of members belonging to SEBC, SC and STs, ठीक है। और कहाँ, तो इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन तो बोला गया, बट दिस थिंग वाज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कि भाई बचाने के लिए किसी, मतलब ये लोग जो है डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं हमारी सोसाइटी में, राइट, तो इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोला गया, राइट। द नेक्स्ट वर्ड यू विल सी कि ये डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, बिकॉज अगर आर्टिकल्स आप पढ़ोगे 15(3) या 15(4) तो जो स्टार्ट होता है ये आर्टिकल, यहाँ शॉर्ट करने के लिए मैंने वो पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं डाला है, राइट, और UPSC के लिए उतना जरूरी भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द एसेंस ऑफ द आर्टिकल, एंड द एसेंस इज कि वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हमने ये एग्जम्पशंस इन आर्टिकल, इन क्लाउजेज में एक्सटेंड किया है, राइट। सो डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस की बात कर रहे थे, तो जो ये क्लाउजेज हैं वो शुरुआत इनकी होती है कि स्टेट में, और स्टेट इज परमिटेड, राइट, इट इज नॉट अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसे आप क्लेम कर सको कि नहीं, अगर बोला है तो वुमेन के लिए बनाना ही पड़ेगा, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाना ही पड़ेगा, SEBC और SC ST के लिए बनाना ही पड़ेगा, नहीं, ये कंपेल नहीं कर सकते, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। और अगर ऐसा डिजाइन पॉलिसीज नहीं करती है स्टेट, राइट, तो यू कैन नॉट ड्रैग द स्टेट इनटू सुप्रीम कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, That's why this is a discretionary provision, right? So दो क्लाउजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला जो कि डील करता था वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस, उनके एडवांसमेंट, उनके इंटरेस्ट के एडवांसमेंट के लिए ला सकता था। 15(4) डील्स विद इंटरेस्ट ऑफ SEBC, SC एंड ST एंड मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, राइट, और पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एंड इसी से फ्लो होगा आपका 15(5) यू विल सी, राइट। यहाँ जो ये जो एक्ट, ये जो क्लाउज है वो डील करता है इनके इंटरेस्ट इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। सो फिर बात आई कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कि भाई पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सेंट्रल पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने इनका इंटरेस्ट इंश्योर कर दिया इन तीनों क्लासेस का,
इन तीनों कास्ट का, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट प्राइवेट एंड अनएडेड स्कूल्स, राइट। अगर प्राइवेट स्कूल्स है और गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल है, राइट, तो उनके लिए क्या, राइट, उनमें इनका इंटरेस्ट कैसे सिक्योर होगा। तो उन कैटेगरी ऑफ स्कूल्स में इनके इंटरेस्ट, इन तीनों सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससी एंड एसटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यू विल सी कि 15(5) आता है थ्रू 93rd अमेंडमेंट इन 2005, एंड हियर स्टेट इज एम्पावर्ड टू डिजाइन स्पेशल प्रोविजन टू सिक्योर एडमिशन ऑफ मेंबर्स बिलो। सारी की सारी लाइनें सेम है, द ओनली डिफरेंस विल बी कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट, स्टेट एंड स्टेट अनएडेड, राइट। सो दीज टू क्लाउजेज आर ऑलमोस्ट सेम, बस इसमें ये डिफरेंस ये है कि ये वाला जो 15(4) क्लाउज था, राइट, दैट वाज डीलिंग विद देयर एजुकेशनल इंटरेस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, व्हाइल हियर इट इज डीलिंग विद प्राइवेट एज वेल एज स्टेट अनएडेड स्कूल एज वेल, राइट। बट ये जो राइट्स हैं इनके, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 29(2), राइट, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है, वहां ये राइट क्लेम नहीं किया जा सकता। सो आई होप 15(3), 15(4), 15(5) जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट clause of 15, article 15, that is 15(6), right. So 15(6) में इकोनॉमिकली अभी ये रिसेंट लेजिस्लेशन आया था थ्रू 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एजुकेशन के बारे में बात की गई, राइट। सो ये रिसेंट एडिशन है, राइट, 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, दिस क्लाउज वाज एडेड थ्रू 103rd अमेंडमेंट, राइट। सो आई होप कि आपको ये 6 के 6 जो क्लाउजेज हैं, ठीक है, वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से ब्रॉडली जस्ट याद करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि ये 6 के 6 क्लाउजेज किस किस के साथ डील करते हैं। सो फर्स्ट यू सी कि फर्स्ट 2 क्लाउजेज डील विद राइट्स दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू अस सिटीजन्स। अगेन माइंड यू कि दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू ऑल पर्सन एज विद आर्टिकल 14, राइट। आर्टिकल 14 जो है ऑल पर्सन्स के साथ, सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स के साथ डील करता है, बट आर्टिकल 15 डील्स ओनली विद इट्स सिटीजन। सो 15 के क्लाउज, फर्स्ट 2 क्लाउज डील्स विद द राइट्स दैट हैज बीन एक्सटेंडेड एंड द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी डन। देयर आर 5 ग्राउंड, रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, एंड देयर आफ्टर दीज 4 clauses of article 15, that is 15(3) to 15(6) deals with exemptions, or you can say exemptions given to the weaker section of, to promote the interest of weaker section of our society, right. So I hope कि article 15 के सारे clauses आपको आ गए होंगे, ठीक है, समझ में आ गए होंगे, राइट। सो अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन, द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 आर्टिकल, एंड फॉर दिस रीजन आई वाज टेलिंग यू कि विदाउट 14 यू नीड नॉट टू स्टडी दिस 15, राइट। सो 14 जो है वाइडर, बहुत वाइडर टर्म में राइट टू इक्वालिटी को इंश्योर करता है, राइट। 15 थोड़ा सा नैरो हो जाता है, एंड 16 में आप देखोगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ स्पेसिफिक राइट टू इक्वालिटी, सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात करता है, राइट। सो आई होप कि आपको आर्टिकल 15 भी क्लियर हो गया होगा, राइट, आ गई होगी। इफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू, बाय बाय।